السلام علیکم۔ اقرار الحسن نے پاکستانی تعلیمی نظام اور اسکولوں میں ہونے والے گھٹیا فعل کے بارے میں ایک دلخراش واقعہ بیان کیا۔ یہ بریک ختم ہونے کے بعد کا وقت تھا۔ یوں تو روزانہ پورے 40 منٹ کی بریک دی جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا، 25 منٹ پر ہی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجا دی گئی اور تمام طلباء کو اپنی اپنی جماعتوں میں جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے 20 منٹ گزر گئے تھے، مگر اب تک ان کی جماعت میں کوئی استانی نہیں آئی تھی۔ یوں تو سب تک اڑتی اڑتی خیر خبر پہنچ چکی تھی کہ آج اسکول میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ واقعہ کیا تھا، اس بارے میں بچیاں ابھی تک اپنی اپنی سوچ کے مطابق چہم گوئیاں کرنے میں مصروف تھی کہ جب بھی اسپیکر پر ابھرنے والی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ سبھی کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اسکول کی پرنسپل نے اسکول میں موجود تمام بچیوں کو اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہونے کو کہا تھا، جس کے بعد ساری بچیاں اپنی اپنی جماعتوں سے نکلی تھیں اور بھاگتے بھاگتے گراؤنڈ میں آ کر جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں پرنسپل کے اسکول کا تمام سٹاف موجود تھا، مالی اور آیا بھی موجود تھے۔ اسکول کے گارڈز کو بھی بلوایا گیا تھا۔ تمام بچیوں کو قطاریں بنوا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد پرنسپل نے استانیوں کو بھی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد استانیاں بھی ایک ایک کر کے قطار کی طرف بڑھتی بچیوں کی چیکنگ کرنے لگی تھی۔ بچیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہنگامی صورتحال میں گراؤنڈ میں بلوانا اور اب یہ چیکنگ، بار بار پوچھنے پر بھی انہیں استانیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جب ساری بچیوں کی چیکنگ کر لی گئی تو اس کے بعد پرنسپل نے آیا اور اسکول گیٹ پر موجود چپڑاسی کو اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بھیجا تھا تاکہ وہ اندر جا کر اچھی طرح چیک کر کے آئیں کہ کہیں کوئی بچی تو اندر نہیں رہ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے اور پرنسپل کو اندر کسی کے نہ ہونے کا بتایا گیا تھا، جس کے بعد پرنسپل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات مزید ابھر آئے۔ پرنسپل نے پرسود نظر تمام بچیوں پر ڈالی تھی۔ اس کے بعد انہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بچیاں یوں ہی قطاروں کی شکل میں اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی تھی، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی پرنسپل گہری نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ تمام بچیوں کو کلاس رومز میں بھیجنے کے بعد پرنسپل نے ایک مرتبہ پھر سے سارے سٹاف کو سٹاف روم میں بلایا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے جاری شدہ میٹنگ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اسکول کی پرنسپل سخت پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے کچھ بھی کر کے حقیقت کا پتہ لگانا تھا، نہیں تو بات اس کی نوکری پر آ سکتی تھی، اور صرف اسی کی نوکری نہیں بلکہ آج تو جو واقعہ ہوا تھا، اگر وہ غلطی سے بھی باہر نکل جاتا تو اسکول کی ساری ساکھ خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن پرنسپل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ کوئی اتنی چھوٹی بات تو نہ تھی کہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ کوئی ادارہ بھلا کیسے یہ بات برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اور کام بھی ایسا جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو۔ پرنسپل ایک مرتبہ پھر سے 1 گھنٹہ قبل ہونے والے واقعے پر نظر ثانی کرنے لگی تھی۔ 11:15 کا وقت تھا۔ اسکول کی بریک ہوئی تھی۔ ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے جب پرنسپل نے اپنے لیے لنچ منگوا لیا تھا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر سٹاف روم کی طرف آ گئی تاکہ سٹاف روم میں ٹیچروں کو آگاہ کر سکے کہ آج تمام بچیوں کی ڈائری پر فرسٹ ٹرم کی ڈیٹ شیٹ لازمی کر دیں، کیونکہ امتحانات شروع ہونے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہ حساب کہنے وہ سٹاف روم میں آئی تھی، لیکن یوں ہی وہ سٹاف روم کے دروازے پر پہنچی، عین اسی وقت اس کے کانوں میں کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پرنسپل نے مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اسکول میں نومولود بچے کو رونے کی آواز حیران کن تھی۔ یہ آواز تو صرف ہسپتالوں اور کلینک وغیرہ پر سنی جاتی ہے۔ تو پھر اسکول میں ایک لمحے کو پرنسپل نے سوچا کہ شاید کسی بچی کی ماں اسکول آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر کوئی عورت آئی بھی تھی تو اس قدر چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر کس طرح آ سکتی تھی، کیونکہ جو آواز آئی تھی وہ آواز ایسی تھی
जैसे कोई अभी दुनिया में आया हो और ये इस बच्चे को रोने की पहली आवाज़ हो। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उठकर उसके आसपास आन खड़ी हुई थी और उन्होंने भी वो आवाज़ बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज़ बस थोड़ी ही देर आई थी, उसके बाद खामोशी छा गई थी। प्रिंसिपल हैरानी से दूसरों की जानिब देखती हुई आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ी थी। टीचर्स भी मारे तजस्सुस के उसके पीछे पीछे ही हो रहे थे और उनको ये बात समझने में देर ना लगी थी कि बिलाशुबा ये आवाज़ स्टाफ रूम के टॉयलेट से ही आ रही थी, जहाँ टीचर्स थे, और यही बात उन सब के लिए हैरान कौन थी। उनमें से तो कोई भी टीचर इस हालत में ना थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर स्टाफ वॉशरूम में था कौन। वो सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर के मनाजिर बगैर किसी दखल के देख सकती थी। यूं ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गई थी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 7 साला बच्ची, जो कि 2वीं क्लास की तालिबा थी, अपने हाथों में एक नवमौलूद बच्चे को उठाए उसको उलट-पुलट कर देखने में मसरूफ़ थी और दूसरा हाथ उसने ज़ोर से नवमौलूद बच्चे के मुंह में रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न आए। अब न जाने उसने जानबूझकर ऐसा किया था या अनजाने में, ये बात उन्हें फिलवक्त समझ नहीं आई थी। प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पहले आया को बुलाया था, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने उस 7 साला बच्ची के हाथ से वह बच्चा लिया था। उन सब का शक था, बच्चा बिल्कुल नंग-धड़ंग हालत में था और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वो सब के सब बेहद परेशान हो चुकी थी कि वॉशरूम में इस 7 साला बच्ची के अलावा और कोई भी मौजूद न था। टीचर फौरन से बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सके, मगर इससे पहले ही वो बच्ची ने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्ची को उठाने की वजह से उसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर को रोका और खुद बच्ची की तरफ गई और उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुंह धुलवाकर स्टाफ रूम में आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं। चॉकलेट का नाम आते ही वो बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी आया ने आकर उसके हाथ मुंह धुलवाए, वर्दी साफ की और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहाँ प्रिंसिपल और बाकी सारी टीचर्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे चॉकलेट पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये बेबी कौन है। उस पर वो बच्ची कहने लगी, ये तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा हुआ था। वॉशरूम गई थी तो ये बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था और जब उसने उसे उठाया तो वो बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने उसे कहा, आप टीचर्स के वॉशरूम में गई क्यों थी? आप जानती हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। फिर उस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची कोई जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी थी। किसी ने कहा, मैडम इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वो सुबह से कई मर्तबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वो वॉशरूम गई थी तो दोनों वॉशरूम्स में पहले ही कोई मौजूद था। इस वजह से वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी में थी तो मैंने इसे स्टाफ वॉशरूम में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची की तरफ नज़र मिली थी और उससे पूछा कि बेटा, जब आप वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा? तो उस पर बच्ची ने ला इल्मी का इजहार किया था। उसका कहना था कि जब वो हाजत से फारिग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी थी तो तब उसने बेसन से ये बच्चा देखा था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक उस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही थी, लेकिन उस बच्ची ने कुछ भी ना बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो और ज़्यादा खौफजदा होती गई। प्रिंसिपल ने उसे प्यार से धमकी दी
और उसे कहा कि वो क्लास में या घर में किसी को भी इस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे ढेर सारे और भी चॉकलेट और पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के जहन से ये बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ उसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग न मिला था। आया ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद उसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया था। उस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी। फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था जो असेंबली हॉल के साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वो कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पियन लैपटॉप ले आया था। प्रिंसिपल ने सिवाय एक के तमाम टीचर्स को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा, और उसके बाद उस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। और फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजिर उसके सामने थे। उसने 10 बजे की कवरेज निकाली। उसके बाद एक चीज को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में सिर्फ 3 टीचर्स थी जो वॉशरूम वाली साइड गई थी, और उन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:15 के करीब पहुंच गई थी, और एन उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फोन पर किसी की कॉल आ गई थी। प्रिंसिपल उस टीचर को देखते रहने का कहकर खुद भी उनके बुलावे पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए उस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब हो रहा था, और उसके बाद यकलख्त उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। 11:52 पर एक 9 साला बच्ची जो चौथी जमात की तलबा थी, वो उस जानिब गई थी जो 11:05 पर वापस आई थी। उसको देखकर उस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और उसे क्लोज करने लगी थी। ज्यों ज्यों वीडियो क्लोज होती जा रही थी, वैसे वैसे उस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़ेह दिखाई देती जा रही थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नज़रों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने उस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, वो उस बच्ची की चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा लड़खड़ाकर चल रही थी। उसके साथ उसके हाथ में कुछ था जिसे वो बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे एकदम से उस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से उस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये वक्त गुस्सा करने का हरगिज नहीं था। उस वक्त उसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए उसने खुद को कंपोज किया, और गहरी सांस खारिज करने के बाद वह सोच चुकी थी कि उसने अब क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा, और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार उससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नज़र आया क्या नहीं। उसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा, और फिर उसके बाद उसने फौरन उसे लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, और उसने जो भी करना था उन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं, और फिर सिर्फ 3.5 ही मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। उसने 10:50 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, और उसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। उसने लैपटॉप को टेबल पर रखा और 11 बजे से
वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर उस टीचर के पास खड़ी हुई थी और उससे इस्तफसार करने लगी थी, जिस पर उस टीचर ने नफी में सर हिलाया था कि अब तक और कोई भी इस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए उसकी जबान हकलाहट का शिकार हो रही थी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा था, लेकिन वो माहिर थी, उसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में आया चाय लेकर आई थी। चाय पीने के बाद उस टीचर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। उसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाज़त ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। उसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी भतीजी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा, अपनी लाडली को संभाल लें। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने इसे बचा लिया है, लेकिन अगर इसकी यही करतूत रहे तो सारे जमाने में तू तू करवाएगी। ये इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, इसे तो मैं अपने घर में भी नहीं रखूंगी। तो इसको भेज दो यहाँ से। बस इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास अपनी पोती को सीने से लगाए हका-बका अपनी बहू की चलती जबान को देख रही थी। उस वक्त उसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। उस वक्त अगर कोई और उसे देख लेता तो वो यकीन ना कर सकता था कि ये औरत एक इदारे की उस्तानी है। खैर, वो बहू पर 3 हर्फ भेजते हुए पोती की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ-पांव ठंडे हो रहे थे। उस वक्त उसे अपने पांव पर कुछ गीला-गीला महसूस हुआ था। उसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चकरा कर गिर गई थी। उसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। उसकी पोती उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उसने जैसे ही पोती की ये हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां उस बच्ची को इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर-उधर चक्कर काटती जा रही थी। उसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो सुनकर उसे कानों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि बात थी भी नाकाबिले यकीन। एक 9 साला बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल ही डर गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वो गलत तो नहीं था। 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद उसकी पोती को घर भेज दिया गया था। उसको होश आया, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके लबों पे किसी ने कफन डाल दिया हो। लाख बुलाने पर वो ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा था, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से उसे रोक ना पाई थी। वो खुद उसे स्कूल छोड़कर आई थी। वो स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती थी, ताकि उससे पूछताछ कर सके कि ये किस किस्म का स्कूल था, कि बच्चियों के साथ कितना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक नहीं होती। आखिर वो लोग इस कदर बेखबर थे, लेकिन उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से न हो पाई थी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसकी टीचर ने उसे फौरन से ऑफिस में जाने का कह दिया था। प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो बच्ची एकदम घबरा गई थी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो इसी चीज से तो कतरा रही थी, इसलिए तो वो इतने दिन स्कूल भी नहीं आई थी। वो जानती थी कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया, तभी वो वहां जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की ज्यादातर लड़कियां उसको नफरत अंगेज नजरों से देखते हुए उससे दूर जा बैठी थी, जैसे वो कोई अछूत हो या फिर किसी गंदगी की पोटली हो। कोई लड़की भी उससे बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी दोस्तें भी उसको गंदी गंदी कहते हुए उससे अलग हो गई थी। ऊपर से अपनी टीचर की चुभती हुई निगाहें उसे अंदर तक चीर रही थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे को सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई और सर नीचे करके रोने लगी थी। तभी उसकी टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी
और उसको उठाकर जबरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने उसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाती, अंदर आती आया ने प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह से काबू भी कर लिया था। तब ही प्रिंसिपल चलते हुए उसके पास आई थी और आते ही साथ में उसने बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में तुम्हें जरा शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? प्रिंसिपल शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिर में नर्म लहजा अपनाए उस बच्ची से पूछने लगी थी। सख्ती करती भी तो किस चीज पर करती? उसके सामने खड़ी बच्ची, जिसका कद मुश्किल 3.5 फुट का था, आंसू गालों से गिर रहे थे और खौफ से थर-थर कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही उसे अपने बाजू छुड़ाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादू को बताया था। दादू ने कहा था कि डरते नहीं, ये निज़ाम कुदरत है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गंदी नहीं हूँ। सब लड़कियां गंदी कह रही हैं मैडम, मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने फौरन से उसे अस्पताल पहुंचाया था और फिर वहां उनको जो कुछ पता चला वो उनके पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। प्रिंसिपल ने उस वक्त स्कूल फोन करके लिस्ट बनाने का कह दिया था कि उस दिन जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे उन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में उनको स्कूल में हाजिर किया जाए। प्रिंसिपल सख्त तैश में आ चुकी थी। उस बच्ची के जरूरी टेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने उसे घर पहुंचा दिया था। अगली सुबह प्रिंसिपल की टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने उसकी बात अच्छी तरह यकीन दिलाने की कि वो तमाम के तमाम लोग आज हाजिर थे। फिर चाहे वो गार्ड हो या क्लर्क या पियन हो या फिर सफाई वाला, तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था। इसके थोड़ी ही देर बाद सिटी अस्पताल में फोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों के डीएनए टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि उस दिन जब उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए थे तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि बच्ची किसी सदमे के जेर असर ही बेहोश हुई है और सदमा ये था कि बच्ची को बालिग हो जाने के बाद में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे। दादी के साथ चचा और चची के घर में रहती थी। चची को तो वो शुरू ही से अच्छी नहीं लगती थी। न जाने चची और दादी बेचारी पुराने जमाने की थी और उसके जहन में यही बात थी कि बच्चियां जो 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालिग होती हैं, लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी बच्ची 9-10 साल की उम्र में बालिग हो रही है। उस 9 साल बच्ची का नाम मानूर था। उसके साथ भी यही हुआ था। वो 9 साल की उम्र में बालिग हो गई थी। उस दिन वो इसी सिलसिले में टीचर के पास गई थी, जिसने उसे ज़रूरी चीज़ें देने के बाद वॉशरूम भेजा था। फिर उस टीचर की माँ की मौत हो गई तो वो उस दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वो वापस आई थी। उस दिन घर आने के बाद मानूर की चची ने उसके साथ जो सलूक किया, उसके बाद मानूर बहुत डर गई थी। उसने सोचा कि उससे कुछ बहुत गलत हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए चची ऐसा कह रही है। इसके बाद उसने अपनी दादी की बातें भी सुनी थी, जो वो डॉक्टर से कह रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर डर गई थी। मजीद सोने पे सुहागा ये हुआ कि क्लास की बच्चियों ने उसे गंदा कहना शुरू कर दिया। तो वो उसे गंदा इसलिए कह रही थी क्योंकि घर वालों और टीचरों की ज़बानी उन्होंने सुना था कि मानूर को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है।
लेकिन महानूर इस बात से अनजान थी। वो समझती थी कि पीरियड की वजह से ही सारी लड़कियां उसे गंदी कह रही हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था। फिर जब वो महानूर को छोड़ने घर गई थी तो उनकी मुलाकात महानूर की दादी से हुई थी। उनसे घर के हालात वगैरह जानने के बाद प्रिंसिपल वहां से निकल आई थी। प्रिंसिपल ने बच्चे की शिनाख्त कराने के लिए फिर डीएनए को ही तरजीह दी थी। इसलिए अगले ही रोज स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए थे और आखिर में जब प्रिंसिपल ने अपने साथ साथ तमाम टीचर्स के टेस्ट करवाने का भी कहा था, उन सब में से एक ऐसी टीचर थी जिसके चेहरे का रंग फक हो गया था। उसे देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। वो पहले ही उसके बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी मजबूत सबूत के वो उसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती थी। मगर अब उसे यकीन था कि सबूत बहुत जल्द उसके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं था। इतनी सारी रिपोर्टों के बाद कम से कम 3 दिन दरकार थे और फिर ये 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। चौथे दिन सारी रिपोर्ट प्रिंसिपल के हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई और सीधा महानूर के घर जाकर रुकी थी। महानूर के घर जाते वक्त वो बच्चा अपने साथ ले जाना भूल ही नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा उसी का था। थोड़ी ही देर में महानूर की चाची भी घर पहुंच चुकी थी। वो प्रिंसिपल को देखकर घबरा गई, लेकिन फिर जो ही उसने उस बच्चे को देखा तो हसीनाने अंदाज में महानूर की तरफ बढ़ी थी। देखा अम्मा, तेरी पोती क्या गुल खिलाकर आई है। हमारा मुंह तो इसने काला कर ही दिया है, हमारे सरों पर खाक डाल दी है। नो उम्री में ही माँ बनकर बैठ गई है। महानूर की चच्ची दोनों हाथों से महानूर को पकड़कर झंझोड़ रही थी। इससे पहले कि वो महानूर को मजीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती, घर के दरवाजे महानूर के चचा अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने आते ही साथ ही में महानूर की चच्ची को पकड़कर महानूर से दूर धकेला था। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर महानूर की दादी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद उससे कहने लगी, ये रही आपकी अमानत, ये बच्चा आप ही का पोता है, इस घर का वारिस है। और फिर वो महानूर की दादी को यूं ही हक्का बक्का छोड़ते हुए चलते हुए महानूर की चच्ची के पास आई थी और उसे कहा था, मैं आपको एक काबिल उतानी समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने के बजाय बनने के लिए फेंक दे, वो किसी और को क्या सबक देगी। आप ना हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं, ना ही रूहानी माँ। आपने एक छोटी सी बच्ची की जात को निशाना बनाया, खुद की जात बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि उस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सिखाएंगी बच्चों को। औलाद झंझट है, इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस है, मैं मजीद आप जैसी उस्तानी और औरत को अपने इदारे में नहीं रख सकती। इतना कहते के साथ ही प्रिंसिपल वहां से चली गई थी। महानूर के चचा को वो पहले से ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि महानूर के चचा का ही था, जिसे उसकी चची ने पैदा होते ही साथ में फेंक दिया था। ये कोई पहला बच्चा ना था। आज से पहले वो 3 बार एबॉर्शन करवा चुकी थी। उसको बच्चे पसंद नहीं थे। यही वजह थी कि उसने अपने बच्चे होने ही नहीं दिए थे। महानूर के चचा ने उसी वक्त उस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वो औरत थी ही इसी काबिल। अपनी जात बचाने के लिए उसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। इसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी साख खराब होते होते रह गई थी। ऊपर से इतने लोगों पर किए जाने वाले शक मनूर जैसी छोटी सी बच्ची पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सरस्त था। ये सब माफी के काबिल नहीं था और न उन लोगों में इतना दर्द था कि उस औरत को माफ करके दोबारा अपने पास रख सकते। तो आज की सबक आमूज वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।